Good morning, dear students. This is your teacher Rakesh Kumar Misra. Dear student, today we are going to discuss the topic GDP. GDP is a well-known term for all of you. You would have been hearing this term right from class 9th, and you may be also reading this term in newspapers, and you can also hear that there is very heated debate on this topic on television and different platforms in the society and social media. So today you have opportunity to know in deep about this term, what the GDP is in actual terms. So dear student, as GDP means gross domestic product. Now let me tell you that what does mean these three terms, for what they stand actually. Gross, domestic, and then product. The term gross prefixed with domestic product indicates that depreciation is included. What is the meaning of gross here? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. जीडीपी में जी, पहला टर्म जो जी है, इसका क्या मतलब है? ग्रॉस. ग्रॉस मीन्स gross indicates that depreciation is included. Remember that when I was teaching you net investment and gross investment, I told you that gross investment includes depreciation, whereas net investment does not include depreciation. तो gross जहाँ होगा वहाँ depreciation included होगा, gross जहाँ नहीं होगा, जहाँ net होगा वहाँ depreciation included नहीं होगा. तो GDP में जो पहला टर्म G है यानी gross, for what does it stand? It stands or it indicates that depreciation is included. Now the term is domestic. The term domestic denotes domestic territory. The term domestic denotes domestic territory. And the product what is the meaning of product? Product indicates a current level of only final goods and services produced in the economy in a particular financial year. जीडीपी में पी किस बात का को इंडिकेट करता है? पी फॉर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं होगा, प्रोडक्ट विल इंक्लूड ऑल फाइनल गुड्स, production of all final goods and services. So GDP is made of three words. Gross means depreciation is included. Domestic means domestic territory of the country, means the production which takes place within the domestic territory of the country will be included. Then there is product. Product means all final goods and services. Now on the basis of these three terms we can define GDP like this, that GDP is the market value of all final goods and services produced by factors of production located in the domestic territory of a country during a particular financial year. जो है अब यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को बहुत थारोली लेंगे कि जीडीपी क्या है. जीडीपी इट इज द, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट इट इज द final value of all, it is the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a particular financial year. तो क्या पिक्चर निकल करके आ रही है कि भाई जीडीपी जो है इट इज सम, ये एक टोटल, इट इज सम ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a particular financial year. Since GDP is measured at market price, then we can express as GDP-MP. GDP-MP means GDP on market price. So this is the exact meaning of GDP. GDP क्या होता है इससे आप ये समझ सकते हैं. Now I am quickly coming on next topic. Next term which is related with this, that is nominal GDP and real GDP. ये it is frequently asked in your board exam, what is nominal GDP and what is real GDP. Dear student, when final goods and services included in GDP are valued at current price, it is called current मार्केट प्राइस जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी.
तो देखिए, जो जीडीपी को हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने कहा, इट इज सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो जब हम ये कह रहे हैं तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस, उसकी वैल्यू को हम, वैल्यू प्राइसेस दो तरह की हो सकती है, एक तो कांस्टेंट प्राइस हो सकती है, दूसरी करंट प्राइस हो सकती है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब बेस ईयर पर, अगर हम बेस ईयर प्राइस को लेकर के, जैसे कि आपने क्लास 11th में इंडेक्स नंबर बनाना सीखा था, उसमें आपने देखा था कि करंट ईयर का प्राइस, करंट प्राइस कुछ और होता है और बेस ईयर का प्राइस कुछ और होता है। दोनों के बीच में कितना प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, इसको निकालने के लिए हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं। तो जीडीपी, जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस हैं, अगर हम उनको बेस ईयर की प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, यानी फिक्स प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज नोन एज रियल जीडीपी। वेयर एज व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी एट करेंट प्राइस, दिस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। तो आज आप दो टर्म और सीख गए हैं, दो टर्म, वो क्या है जीडीपी से रिलेटेड, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी is calculated on current market price, therefore it is called nominal GDP। अब आप बच्चों, आप समझ सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो करंट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, और रियल जीडीपी जो कि बेस ईयर प्राइस या फिक्स प्राइस पर कैलकुलेट होगा, दोनों में से कौन सा जीडीपी ज़्यादा बेहतर मेजरमेंट देगा, बेस ईयर वाला या करंट ईयर वाला? अब ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर बताएंगे कि बेस ईयर पर कैलकुलेटेड जीडीपी रियल पिक्चर ऑफ जीडीपी देगा या करंट प्राइस पर कैलकुलेटेड जीडीपी रियल पिक्चर ऑफ जीडीपी देगा। वैसे आप समझ सकते हैं, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया हुआ है, इसका मतलब उसमें इन्फ्लेशनरी इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। और अगर बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जा रहा है तो उसमें इन्फ्लेशनरी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसीलिए रियल प्राइस पर जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, यानी रियल जीडीपी जो बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, वो ज़्यादा रिलायबल होती है। So real GDP is more reliable, it is free from inflationary influence, whereas nominal GDP is less reliable and it includes the inflationary influence in it. So अब आप जो है, आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूं कि कैसे नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी आप निकाल सकते हैं। द फार्मूला इज दैट रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो रियल जीडीपी का फार्मूला क्या है, जो आपको पीडीएफ नोट्स भेजे जाएंगे, उसमें से आप इसको नोट करेंगे ये सब चीज़ें। लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला दैट रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन करेंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर measures the average change in the price level of all goods and services that constitute GDP। तो ये जो GDP डिफ्लेटर है, ये प्राइस इंडेक्स ही है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये प्राइस में दो टर्म्स के बीच में, दो समय के बीच में प्राइस में जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं, उनको जीडीपी, जो भी गुड्स और सर्विसेज जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उनके प्राइसेस में जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं, उनको दिखाता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप इससे जीडीपी डिफ्लेटर क्या है इसको लिख लेंगे, रियल जीडीपी क्या है इसको लिख लेंगे, नॉमिनल जीडीपी क्या है इसको लिख लेंगे, जीडीपी क्या है इसको लिख लेंगे, और साथ में आप रियल जीडीपी का फार्मूला लिख देंगे। मैं आपको चलते चलते बता दूं कि जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अगेन रिमेंबर, जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। और रियल जीडीपी का फार्मूला क्या है, जस्ट आप अपनी मेमोरी को से बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन करेंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नाउ स्टूडेंट, देयर इज ए स्मॉल डिबेट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, क्या दोनों, जीडीपी और इकोनॉमिक वेलफेयर क्या दोनों पॉजिटिवली एसोसिएटेड है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी, इट इज ट्रीटेड एज गुड फॉर इकोनॉमी। व्हेन जीडीपी इंक्रीजेज, इट इज नोटेड एज गुड मैसेज फॉर इकोनॉमी। But however this may not be true।
इसी डिबेट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इफ there is increasement GDP, does it really mean something for economy? Does it really causes some welfare effect in the economy? When there is increase in the economy, this is certainly going to increase the economic welfare of its citizen also. तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ आउटपुट एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटीज और पॉपुलेशन ग्रोथ, और देन देयर इज न्यू कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी। ये कुछ 5-6 ऐसे कंसेप्ट हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बात को चैलेंज करते हैं कि इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन जीडीपी, दिस विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजमेंट लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी आल्सो। मीन्स when there is increase in GDP, this is not certainly going to affect the living standard of the people, and it is certainly not going to increase the economic welfare of the country when composition of the GDP is not okay, when distribution of the GDP is not okay, when there is lot of non-monetary exchanges taking place in the economy, and if there is more negative externalities in the economy. And yes, if there is increasement in GDP and population increases more than GDP, means rate of increasement in GDP is less than rate of increasement in population, this then all these factors are not going to certainly cause any positive effect in the economy. So it will not guarantee that when there increase in GDP is going to increase the economic welfare level of economy. And one last point which is very important, that if increase in GDP is going to cause massive loss of natural capital of the economy, अगर इकोनॉमी की नेचुरल कैपिटल उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, मतलब जीडीपी में तो इंक्रीज हो रहा है एंड इट इज़ रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉस इन द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द इकोनॉमी, जैसे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एयर क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी है, और ये सब बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, तो ऐसा इंक्रीजमेंट इन जीडीपी विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द country. So dear student, thank you very much. You again and again listen this audio. I'll send you the PDF, make your notes on GDP and complete the topic. Thank you very much.